Hello students, welcome you all. In our previous class, we had completed the page number 49 and the in-text question set 3. Today we will start with the set 4 in-text question, which is on page number 53. You can see the picture of your question set. So what is the first question? Define the following terms: mineral, ore and gangue. So what is the mineral? If you see, you will find at the page number 50, you will find the definition of mineral as well as ore. What is this mineral? Element compound which occur naturally in earth crust. Okay, the elements or compound which occur naturally जो भी अर्थ क्रस्ट में हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. क्लियर? And like you can say alums, K2SO4, Al2SO4 thrice 24H2O. Then come to the ore. What is ore? Second question क्या है आपका? ore. ore क्या है? The same thing is mineral होगा, but it is having the very high percentage of that metal. Clear? So minerals contains very high percentage of metals. अब उससे क्या होगा? So that metals can be profitably extracted from it, and these minerals are called ore. मीन्स है तो वो मिनरल्स ही, लेकिन यहाँ पर मेटल्स का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है. सो वन थिंग वी कैन से दैट all minerals are not considered as ore, but all ores are minerals. Now the third question क्या? थर्ड डेफिनेशन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है what is gangue. Then again you see the page number 50, you will find what is ore, what is gangue. So when we go for the extraction of our metals, then there is a process of enrichment of ore. जो भी ore हमें मिलता है वो contaminated होता है with large amount of impurities like soil and sand. तो ये जो impurities होती हैं, पूरा ore नहीं, याद रखिएगा, इसमें जो impurities हैं उन्हें हम gangue कहते हैं. इन gangues को हमें remove करना पड़ता है. So what you can say, the ore mined from the earths are naturally contaminated with sand, rocky material, soil, and these impurities present in ore are known as gangue. Then the question number 2, name the two metals which are found in nature in free state. अब आपसे free state में पूछा है, means कि ये किसी से react नहीं कर रहा है. react नहीं कर रहा है मतलब बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा. तो हमें एक्टिविटी सीरीज में भी पता है कि लीस्ट रिएक्टिव कैसे, और वैसे भी हमें पता है कि कौन कौन से मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं. तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड एंड प्लैटिनम. तो गोल्ड एंड प्लैटिनम आर द टू मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. अब देखिए, ऑक्साइड की फॉर्म में है तो हम इसे रिड्यूस करेंगे तभी ऑक्साइड निकलेगा और हमें मेटल मिलेगा. सो सिंपल प्रोसेस है कि रिडक्शन मेथड. ठीक, रिडक्शन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. लेट्स सी सम एग्जांपल. आपके पेज नंबर 51 पे एग्जांपल प्रेजेंट है. जिंक आपको मिल रहा है जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू रिड्यूस इट. अब हमें रिड्यूस करने के लिए हर बार हमें सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप देखें तो बेस्ट होता है कार्बन. व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट हीट जिंक ऑक्साइड विथ कार्बन. सो ZnO solid plus carbon solid, you will get on heating, you will get the Zn solid, zinc आपको मिलेगा plus carbon monoxide. In the same way PbO, lead oxide is also reduced by this process, PbO plus carbon, you will get the Pb plus carbon monoxide. So it was on the page number 53. Now come to the next set of question, which is a fifth set of question on the page number 55. You can see picture is to you. What is, you can see in the first question there is a table. What is the question? Metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with following metals. किसके किसके साथ? अब आप देखिए पिक्चर में क्या दिया हुआ, मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और दूसरा टेबल मिला है जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर का.
अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच केस यू विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ, कम टू द रिएक्टिविटी सीरीज, और आप देखेंगे जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इफ़ यू विल फाइंड जिंक के जस्ट ऊपर कौन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर ऑर्डर बनाए तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन जिंक, और फिर उसके बाद कॉपर। तो सिंपल है कि आपको कौन कौन कैसे, अब जिंक ऑक्साइड को कौन रिप्लेस करेगा, तो जिंक से रिएक्टिव कौन है, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव इन तीनों में मैग्नीशियम है, सो मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस। देन अब मैग्नीशियम से रिएक्टिव इन तीनों में तो कोई नहीं है, तो इसे कोई नहीं रिप्लेस करेगा। नाउ कॉपर ऑक्साइड में, अब देखिए कॉपर से रिएक्टिव मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को जिंक एंड मैग्नीशियम बोथ इट विल मीन्स जिंक एंड मैग्नीशियम विल रिप्लेस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजली। ओके, तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें कि तो कौन सा मेटल है जो कोरोड नहीं होगा, वेरी ऑब्वियस दैट विच इज नॉट वेरी रिएक्टिव, which is not very reactive is gold and platinum. So gold and platinum are the metal which do not corrode easily. Actually इनको अगर हमें corrode करना भी है या फिर इन पे रिएक्शन करना भी है तो एक्वारेजिया जो होता है, जिसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, दैट इज हैविंग द रेशियो ऑफ HNO3 एंड HCl। HCl का 3 होता है एंड HNO3 1 होता है, 3:1 का रेशियो होता है, वो उन्हें कोरोड कर देगा, बट और कोई केमिकल यूजली इस पे एक्ट भी नहीं कर पाता, तो कोरोजन विल नॉट टेक्स प्लेस इजली ऑन द गोल्ड एंड प्लैटिनम। नाउ कम टू द व्हाट आर एलॉयज। एलॉय किसे कहते हैं, तो एलॉय आपको पता है कि ये होमोजेनस मिक्सचर है, हमने पहले भी पढ़ा है। और किसका होमोजेनस मिक्सचर है, आइदर टू मेटल्स, आइदर मेटल एंड नॉन मेटल्स, क्लियर। तो what is the alloy? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metal और a metal and non metal। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, I am just recalling what is the importance of this alloy। alloy की importance क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली alloy क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं मेटल की जो प्रॉपर्टी उसको और मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टैच्यूज़ बनाने होंगे तो आप नॉर्मल कॉपर को नहीं यूज़ करेंगे, यू विल प्रेफर टू टेक ब्रॉन्ज जो कि इसका एलॉय होगा। तो इससे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है या जो मेटल आपका होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो और बढ़िया लश्चर और ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई हो जाते हैं, इसलिए हम एलॉय को प्रेफर करते हैं कमर्शियल प्लेसेस में काम करने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शुरू करेंगे एंड पेज नंबर 56 पे जितने क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे एंड पेज नंबर 56 के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर will give the displacement reaction। okay, अब displacement reaction, now you can just notice कि आपको reactivity series याद करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, NaCl solution and copper metal। तो अब आप बताइए कि क्या कॉपर मेटल Na से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं है, तो A will not be the answer। देन द सेकेंड, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही केवल रिप्लेस करेगा, मैग्नीशियम सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में फिर देखिए, यू विल फाइंड कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, सो इट विल नॉट बी डिस्प्लेस। देन द सी ऑप्शन, FeSO4 सॉल्यूशन इन सिल्वर, यू विल सी दैट सिल्वर तो बहुत नीचे आ रहा है, लीस्ट रिएक्टिव में आ रहा है, तो ये Fe को बिल्कुल रिप्लेस नहीं करेगा। नाउ द लास्ट इज AgNO3 सॉल्यूशन इन कॉपर। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल सी दैट कॉपर इज अबव देन copper is above than silver, means it will displace the AgNO3। okay, means AgNO3 and copper is correct answer। copper displays the silver cation because it is more reactive in the process। copper itself being oxidized, हमें पता है कि एक अगर रिड्यूस होता है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होता है, इसी तरह से पूरी रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है, जिसे मैंने पहले की क्लासेस में भी आप लोगों को अच्छे से समझाया है।
सो सिल्वर मेटल जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा और you will get the precipitate of silver metal. Okay, now the question number second, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? अब देखिए फ्राइंग पैन है, ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये सब एक तरीके से रस्टिंग को प्रिवेंट करेंगे, बट साथ में क्या पूछा हुआ है, फ्राइंग पैन जिसको कि हमें फायर से भी एक्सपोज करना है। तो अप्लाइंग द ग्रीस, नो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जैसे ही हम ग्रीस अप्लाई करेंगे और फायर से एक्सपोज करेंगे तो ये तुरंत दिस ग्रीस विल रिएक्ट एंड कह सकते हैं कि इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। देन अप्लाइंग पेंट भी इसका ख़राब हो जाएगा तुरंत, बिकॉज ये दोनों जो है टेम्परेचर के और बहुत हाई टेम्परेचर को रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। देन द थर्ड, अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही आंसर होगा। दो अप्लाइंग द ग्रीस एंड paint will prevent the iron from rusting, but we cannot apply these methods on the frying pan. Hence, applying the coat of zinc is most appropriate method to prevent an iron pan from rusting. Okay, तो ये हो गया आपका। Now come to the question number 3. An element react with oxygen to give a compound with high melting point. Okay, एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड दे रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, ओके, एंड द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, ठीक। तो पहले हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा, एंड आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो सिलिकॉन एंड आयरन ऑक्साइड तो सॉल्युबल नहीं है, ठीक। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों सॉल्युबल तो हैं, बट हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का। यस, अब देखते हैं, एक्सप्लेनेशन फिर से मैं बता रही हूँ। सो आपका जो आंसर जाएगा क्या होगा, आंसर विल बी ए, कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। और अगर हम वाटर सॉल्युबल मतलब मीन्स वाटर में जब डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है विच गिव्स, अगर कार्बन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन विच इज़ अ गैस। तो ये आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि आपको एक कंपाउंड मिलेगा जो कि सॉल्युबल करने के लिए बोल रहा था, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। सिलिकॉन तो इनसॉल्युबल है, आयरन भी इनसॉल्युबल है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड सुटेबल आंसर होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. What is the question number 4? Food canes are coated with tin. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नॉट विद जिंक, जिंक से नहीं कोट करते, हम टिन से कोट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, चलो अच्छा पहले देख लेते हैं। एक्चुअली हमें पता है कि जिंक बहुत रिएक्टिव है, बट लेट्स सी द आंसर ऑप्शंस। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, बट फूड की बात है तो हम ये भी कॉस्ट अफोर्ड करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। Zinc has the higher melting point than tin. Then zinc is more reactive than tin. Zinc is less reactive than tin. अब ये इतनी चीज़ आती है, ठीक है। तो जिंक के साथ अगर आप देखेंगे तो जिंक अगेन यू विल सी द रिएक्टिविटी सीरीज एंड यू विल फाइंड दैट जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब रिएक्टिव है तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जब भी हम जैसे ही फूड केन में फूड डालेंगे जिंक की पॉलिश करके तो फूड विल रिएक्ट विद जिंक एंड इट विल बिकम पॉइजनस। तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो वी विल अवॉइड द जिंक। सो द ऑप्शन यू कैन सी, ऑप्शन सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, सो वी अवॉइड द जिंक एंड वी कोट विद द टिन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड हैविंग यू कैन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड डूइंग, एंड ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। व्हाट इज गिवन? यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, अ वायर एंड अ स्विच। कुछ दिमाग में एक प्रोजेक्शन बन रहा है कि क्या क्या यूज़ हो सकता है। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या, हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आपको मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ सैंपल दिए हुए और टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट किट दी हुई है उसमें एक हैमर है, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। हम कुछ नहीं करेंगे, हम हैमर से टेस्ट करेंगे मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, सॉरी मेलेबिलिटी टेस्ट करेंगे,
if possible we'll try to you can say test the ductility also. then आपके पास दूसरी एक किट मतलब किट में दूसरा जो एक सेट है बल्ब वायर स्विच का, यू कैन मेक अ सर्किट, आप सर्किट बना सकते हैं जिससे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो। चलो करते हैं, ठीक। हाउ कुड यू यूज़ देम, समझ में आ गया। इन दोनों को हमने अलग अलग सेट्स बनानी है। सो metals are malleable and can be easily drawn into sheets by hitting with hammer. On other hand, if we beat अगर हम नॉन मेटल पे अगर ऐसे ही हैमर से बीटिंग करेंगे तो क्या होता है, आइदर इट विल बी ब्रेक डाउन, ये तुरंत से ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स और आई वांट टू से दैट इट इज़ नॉट मेलेबल। तो ये पहला हो गया, मेलेबिलिटी हमने टेस्ट कर ली। नाउ एंड दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स, क्लियर। नाउ द सेकेंड, हमने जो दूसरा सेट बनाया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करने का, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस दे मेक द बल्ब व्हेन दे कनेक्ट मेटल्स विद बैटरी इट विल ग्लो। ओके, हम जब पूरा सर्किट बनाएंगे। बट व्हाट अबाउट द नॉन मेटल, दे आर द बैड कंडक्टर, तो आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं करेगा, क्लियर। Then the question number 2, assess the usefulness of these tests in distinguish between metal and non-metal. It is a very good to demonstrate that malleability and electric conductivity of the metal and non-metal. तो ये हमने पूरा सेट तैयार कर लिया था और हमने टेस्ट भी करके बता दिया। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में अगली बार कुछ और आ जाए, ठीक है, तो हैमर की जगह कुछ और सेट दूसरी किट दे दी जाए आपको, तो वी नीड टू यूज़ और कॉमन सेंस कि येस व्हाट वी कैन डू। हम मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, आपको सपोज करो दे दिया बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए या टेम्परेचर, तो इस तरीके से बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, और बता दिया कि ये इसका नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करके बताना होगा कि येस इसका मेटल मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये मेटल में आएगा, और इसका कम है तो इट विल कम अंडर द नॉन मेटल कैटेगरी। और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी, यू शुड राइट अ नोट कि आप एक्सेप्शंस को अवॉइड करेंगे, ये जनरल कॉन्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस देखिए हर जगह हैं। ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसी जगह पे हम यहाँ पर एक नोट में लिख देंगे देयर आर सम एक्सेप्शन, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is sixth question, what are amphoteric oxide, give two example of amphoteric oxide। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली हमें पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक जो होते हैं एसिडिक होते हैं, बट देयर आर सम ऑक्साइड्स मेटेलिक ऑक्साइड विच हैव द बोथ प्रॉपर्टी बेसिक एज वेल एज एसिडिक, तो जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, मीन्स दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, मतलब सॉल्ट से रिएक्ट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरह काम करेंगे, बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह काम करेंगे। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबिया या एम्फो का मतलब होता है दो, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे, ठीक। ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एग्जाम्पल क्या है, लेड ऑक्साइड, Al2O3, यू कैन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं बेटा। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द वन विच रिएक्ट विद बोथ, मैंने बता दिया है आपको, यहाँ तक का हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज डिस्कशन। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। आपको दो मेटल्स बताने हैं जो कि अब हमने याद करिए, आपको ब्लू क्वेश्चन जब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी हमने देखा था, तो जो बहुत रिएक्टिव होंगे उनकी बात करेंगे, वो डिस्प्लेस कर देंगे। देन यू विल फाइंड द आंसर, जिंक एंड मैग्नीशियम आर द टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड एज दे आर वेरी रिएक्टिव। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच विल नॉट, तो हम उनकी बात करेंगे जो कि रिएक्टिव नहीं है। तो gold and silver are the metals which will not replace the hydrogen from dilute acid as these metals are least reactive. So it was all about for today. In the next and last part of this discussion, we will complete the whole exercise. For today, it was all from my side. Thank you very much, students. Stay healthy, stay safe.